Now the next topic is ozone layer and its depletion. Ozone layer, it is formed by the molecule of ozone. So you should know that what is ozone. Ozone is the triatom of the oxygen. Okay, oxygen अगर हम normal देखें तो it is represented by O2. So जब उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 atoms आते हैं यानी 3 बार O आएगा, then it is known as the ozone. So here in the ozone there are 2 types of ozone that are present in the 2 layers of atmosphere. One is the bad ozone and second one is the good ozone. Bad ozone, it is related with the troposphere layer of the atmosphere, जो हमारे atmosphere के एकदम top में present है. Okay, earth के एकदम top पे present है. And then the good ozone, it is present in the stratosphere, which is also termed as the ozonosphere. Now how this ozone is formed? When the oxygen, it reacts in the presence of ultraviolet radiation, the oxygen molecule, it breaks up into the 2 nascent oxygen. These 2 nascent oxygen, which I have drawn into the brackets, they are more reactive oxygens. Okay, so what they do, these reactive oxygens, they react with the oxygen molecules present in the air and they form the O3, that is the ozone. Now this ozone, it is very helpful for us because it is helping in absorbing the ultraviolet radiation. But nowadays what is happening, this ozone layer, which is formed by so many ozone molecules, it keeps on degrading. Okay, so the amount of ozone that is present in the stratosphere, it begins to drop. उसका नंबर क्या होता जा रहा है, अब decrease होता जा रहा है. And as a result what happens, we can say that ozone layer is depleting, thin होती जा रही है. ये एक thick layer थी, अब धीरे धीरे जब ozone molecules degrade हो रहे हैं तो ये धीरे धीरे thin होती जा रही है. And this thinning of the ozone layer, it is called as the ozone hole. Okay, basically ये एक hole नहीं है, ये just thinning है layer की. Okay, now these ozone layer, it is depleted by the special kind of chemicals which are termed as the ozone depleting substances. Okay, so these are the substances which react with ozone and they damage the ozone, they destroy the ozone, like chlorofluorocarbons, halogens, carbon tetrachlorides, they all are the examples of ODS. तो एग्जाम में कई बार ODS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है. सो ODS, दे आर दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, यानी ये वो केमिकल्स हैं, वो सब्सटेंसेज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन layer. Now these CFCs, they are used as the refrigerants or coolants and even the foam producing agent, solvent for cleaning and aerosol spray. इन सभी के अंदर जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, they all carries the chlorofluorocarbons. Okay, the chlorofluorocarbons, they are called as the ozone depleting substances. So all of these ozone depleting substances, they consist of the chlorine atoms. Okay, they release the chlorine atom. So when these chlorine atoms, they react with the ozone molecule, they break up the ozone molecule into the monochlorides. Okay, oxomonochlorides. Okay, and further these oxomonochlorides, they broken into the chlorine atoms. Further ये जो chlorine atoms बनेंगे, ये further क्या करेंगे, और ओजोन molecules के साथ जाकर react करेंगे और उनको भी ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट कर देंगे और धीरे धीरे ओजोन का जो अमाउंट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाता है. ओके, अब various problems they are associated with the ozone depletion. That is very important question. What are the problems associated with the ozone depletion? It is the skin cancer. अब जो ओजोन है उसका मेन फंक्शन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कराना. तो अब क्या होता जा रहा है, जब ओजोन लेयर थिन होती जा रही है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी अर्थ के ऊपर आ रही है एंड इट इज़ कॉजिंग द स्किन कैंसर in the individuals living on the earth. Okay, and sometimes what happen, the cornea, the part of the eye, it is when it is coming in the exposure with the ultraviolet rays,
it cause the blindness, okay, and that kind of blindness it is called as the snow blindness. कॉर्निया के ऊपर वाइट कलर की लेयर आ जाती है, ओके. देन कम्स दी फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो लोअर डाउन हो जाता है अगर वो अगर प्लांट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट में लीड टू दी लेस एक्सटेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर. नाउ if the ozone depletion it occurs, mutation can take place. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास प्रॉपर्टी है कि वो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसके स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. सो वेरियस काइंड ऑफ म्यूटेशन दे कैन ऑल्सो टेक प्लेस. ओके. नाउ एज इट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम रिलेटेड विद द इन्वायरमेंट, सो देयर आर सम ऑफ द इंटरनेशनल एफर्ट्स मेड टू चेक द ओजोन लेयर damage. So what are these various international efforts? They are the Montreal Protocol, which was signed in 1987 and it comes in action in 1988. इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, जितने भी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे उनको एक टाइम मिला था, एक लिमिट मिली थी कि उतने ही लिमिट में उनकी जो कंट्रीज़ हैं वो ओजोन मतलब ओडीएस या फिर सीएफसीज़ को प्रोड्यूस कर सकती हैं. ओके. अगर उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस होती है तो उनके ऊपर फाइन इम्पोज होता था. ओके. उसके बाद है हेलसिंकी declaration. Helsinki Declaration, it was signed in 1989 to phase out the production of CFCs by the end of the 20th century. यानी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये साइन हुआ था. उसके बाद आता है बीजिंग कॉन्फ्रेंस. बीजिंग कॉन्फ्रेंस was signed in the 1999 by UNEP and UNDP. Okay, it is UNEP is the international environment program, okay, and UNDP is for the developing countries. Okay, so ये दोनों organization along with the World Bank what they do, they create a fund. उन्होंने पैसों से हेल्प करने की, फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करी डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ की कि वो जल्दी से जल्दी ओडीएस को ख़त्म कर दे, ओडीएस की सिक्रीशन को लेस यूज़ करे. ओके. देन कम्स द किगाली कॉन्फ्रेंस. ये सबसे लेटेस्ट वन है जो 2016 में साइन हुआ था. इसके अंदर सभी कंट्रीज़ को एक टाइम फ्रेम मिला जिसके अंदर उनको अपनी कंट्री में ओडीएस के अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डिक्रीज़ करना है. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजिंग द गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस. बिफोर दैट यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड गार्बेज. जितना भी हम सॉलिड वेस्ट अपने ट्रैशेस में डालते हैं, अपने डस्टबिन्स में डालते हैं, ऑल दैट सॉलिड वेस्ट इट कंस्टिट्यूट्स द गार्बेज. ओके. जितना भी वेस्ट हम अपने घर से, स्कूल से, ऑफिस, मार्केट, इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना भी हॉस्पिटल्स में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, वी कॉल इट एज garbage. So to dispose of this garbage there comes the need of the garbage management. So what is garbage management? Garbage management means it is the clean, non-polluting and non-contaminating disposal of the garbage. यानी garbage को एक protected manner में dispose of करना, एक healthy manner में dispose of करना. अब जो garbage management है it consists of the collection, transport and disposal of the garbage, and it is responsible for the collection of the garbage, transport of the garbage, and third one is the disposal of the garbage. Nowadays you all have noticed that these the garbage it is divided into, it is segregated into two categories, biodegradable and non biodegradable. Okay, biodegradable and non biodegradable, ग्रीन और ब्लू डस्टबिन्स के अंदर हम इनको डालते हैं. ओके. अब ये जो गार्बेज है इसके डिफरेंट मेथड्स हैं डिस्पोज ऑफ के. अब गार्बेज जितना भी रिसाइक्लेबल आर्टिकल्स हैं गार्बेज में, उनको तो रैक पिकर्स पिक कर लेते हैं. ओके. एंड जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको हम कंपोस्ट बनाने में, बायोगैस बनाने में यूज़ कर लेते हैं. अब जो हार्मफुल वेस्ट रहता है, हैज़ार्डस वेस्ट रहता है, जैसे कि हॉस्पिटल वेस्ट है, वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं. अब ऐसे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना एक चैलेंज है. तो उस केस के लिए हम स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं, इंसिनरेशन. इंसिनरेशन के अंदर क्या होता है, एक चैम्बर के अंदर इन सारे हैज़ार्डस, सारे हार्मफुल वेस्ट को
बर्न कराया जाता है। और इन चैम्बर्स के अंदर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हार्मफुल गैसेस को और पार्टिकुलेट मैटर को बाहर एमिट नहीं होने देते, और इसमें से जो ऐश बनती है आफ्टर बर्निंग दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, उस ऐश को हम लैंड फिलिंग में यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब लैंड फिलिंग क्या है? ये सबसे जनरल मेथड यूज़ करते हैं हम डिस्पोज ऑफ के लिए। हम लैंड के अंदर एक पिट बना लेते हैं, गड्ढा बना लेते हैं, उसके अंदर हम जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या जितना भी वेस्ट है उसको हम क्या करते रहते हैं, डंप कर देते हैं। ओके, एंड फाइनली उसको सॉइल से कवर कर लेते हैं। ओके, बाद में क्या होता है, उस लैंड को हम एज अ ग्राउंड भी यूज़ कर लेते हैं, प्लेग्राउंड की तरह यूज़ कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ healthy method of dispose of. Okay, now come to the next term which is also associated with the garbage, that is the sewage. Okay, जितना भी वेस्ट आपकी नाली में ड्रेन आउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। दैट इज़ अगेन पोल्यूटिंग दी रिवर्स और दी वाटर बॉडीज़ नियर बाय दैट। तो उनको भी अब क्या है, जो रिवर्स हैं, जितनी भी हमारी होली रिवर्स हैं, गंगा है, यमुना है, दे आर बीइंग पोल्यूटेड बाय दी सीवेज ऑफ दी मेट्रो सिटीज़ दैट आर प्रेजेंट, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सिटीज़ दैट आर प्रेजेंट नियर बाय। ओके, तो इन रिवर्स के वाटर को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हुए हैं जो इस सीवेज को रिवर के अंदर डालने से पहले ट्रीट करते हैं, उनका जो पोल्यूशन लेवल है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ डिस्पोजेबल कप्स। अब ये जो डिस्पोजेबल कप्स हैं ये क्या हैं, पहले जो हमारी रेलवेज़ थी, जो हमारी ट्रेन्स थी, उसके अंदर क्या होता था, जो चाय है, द टी वॉज सर्व्ड इन दी रीयूजेबल ग्लासेस, यानी नॉर्मल जो ग्लासेस होते हैं कांच के या किसी भी तरह के, उनमें हम सर्व करते थे चाय को। लेकिन क्या होता था, उनको क्लीन करना और उनकी कंटामिनेशन ना हो, कंटामिनेशन मतलब उनमें अगर प्रॉपरली क्लीनिनेस नहीं होगी तो क्या होगा, उसके ऊपर जर्म्स इन्फेक्ट कर देंगे, तो बहुत सारे डिजीज़ेज़, फूड रिलेटेड डिजीज़ेज़ वहाँ से कॉज होते थे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट दे हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स द डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। लेकिन डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स के साथ भी एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड थी कि हम उसको अगर डिस्पोज ऑफ करा रहे थे तो जब हम उसको डिस्पोज ऑफ कराने के लिए बर्न करते थे तो वहाँ से टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती थी। सेकेंडली, अगर हम उनको डंप करते थे तो वो हमारा जो सॉइल था उसकी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर रहा था, सॉइल को पोल्यूट कर रहा था। सो धीरे धीरे डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स को भी ओवरटेक करा दिया गया कूलर्स के साथ। कूलर्स क्या हैं, ये होते हैं बर्नट क्ले कप्स, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया गया। ये एक अच्छा इफ़ेक्टिव मेथड था क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल था, लेकिन इसके साथ भी एक मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड थी कि जो मिट्टी से ये बन रहे थे, दैट क्ले दैट वाज टेकन अप फ्रॉम दी टॉप फर्टाइल सॉइल। ओके, सो धीरे धीरे क्या होता गया, जब क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में कूलर्स बनने थे, क्योंकि सभी रेलवेज स्टेशंस पे ये ज़रूरत थी इनकी, तो जो टॉप सॉइल था वो हमारी कंट्री का धीरे धीरे क्या होने लग गया, रिड्यूस होने लग गया। ओके, और जो लैंड है वो अनफर्टाइल बन गई, तो इस मेथड को भी जल्दी ही डिसकंटिन्यू करा दिया गया। अब जो फाइनली मेथड यूज़ हुआ इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, नाउ डेज वी आर यूजिंग द डिस्पोजेबल पेपर कप। दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन दैट वाज टेकन अप बाय द इंडियन रेलवेज। ओके, तो आजकल जो रेलवे स्टेशन पे कप्स यूज़ हो रहे हैं वो डिस्पोजेबल पेपर कप्स हैं। तो पेपर एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ओके, तो हम उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, क्लियर, पेपर की, क्योंकि आप सभी को पता है ईजिली रिसाइकलिंग हो सकती है। वी कैन बर्न इट आउट, अगर हम बर्न करेंगे तो ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स भी रिलीज नहीं होंगे, एंड साथ के साथ हम इनको डीकम्पोज भी करा सकते हैं बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। ओके, now one more problem is associated with the disposal of the waste, that is the e-waste। आज के टाइम में, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक एरा है, ओके, एवरीवन इज़ यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन देयर ऑफिसेज, इन देयर होम्स। सो ये जो ई वेस्ट है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो वेस्ट है, ये एक चैलेंज है, इसको डिस्पोज करना एक चैलेंज है। लाइक टीवी है, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये अगर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो
तो क्या होगा, जब ये ख़राब हो जाते हैं तो हम इनको रीसाइकिल नहीं कर सकते। ओके, अगर रीसाइकिल करते हैं तो इनमें से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। ओके, तो ये हमारी कंट्री के लिए एक मेजर इशू है। क्लियर? और जितनी भी आपको जानकर हैरानी होगी, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ई वेस्ट को क्या करती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनको बेच देती हैं। और इंडियंस, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशीज़, व्हाट दे डू, दे बाय दिस वेस्ट। ओके, ये इस वेस्ट को लेकर आएंगे पैसे से ख़रीद कर। ओके, एंड व्हाट दे डू, ये यहाँ पर अपनी कंट्री को पोल्यूट करते हैं। यहाँ पर इंडिया में लाकर उसको क्या किया जाता है, उसमें से छोटा मोटा जितने भी स्क्रैचेस निकलते हैं जो यूज़फुल होंगे वो रखकर इस सारे वेस्ट को यहाँ पर हमारी कंट्री में डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। एंड दोज डेवलप्ड कंट्रीज़, दे आर वेरी स्मार्ट, उन्होंने इसको बेचना है। ठीक है, वो इस सामान को बेचते हैं। ओके, इंडियंस और ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये ख़रीदती हैं और अपनी कंट्रीज़ को क्या कर रही हैं, पोल्यूटेड कर रही हैं। तो ये जो ई वेस्ट है, इसके डिस्पोजल, ये जो इसका डिस्पोजल है, ये एक चैलेंज है। ओके, because they are releasing many of the harmful chemicals, many of the harmful elements like nickel, cadmium, mercury, lead, they all are the heavy metals. Okay, तो ये भी biological magnification cause करते हैं। Is that clear? उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट, हमें पता है प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, बट देन अगेन इट इज़ वन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो उसको भी डिस्पोज ऑफ करना एक चैलेंज है। इज़ दैट क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर आर एनवायरनमेंट। आई होप कि आपको इन वीडियोज़ के थ्रू ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।